often than not, as I said, we are engaged in negative talk. Everything negative, right from the morning till night. About persons, about people, about time, about everything, about circumstances, about events of life, about past, about future. Our mind is so much engaged in that negativity that there is hardly any time for positive self-talk. What should we do so that we come out of this negativity, this negative chatter, this negative self-talk, and enter into the field of positive self-talk? So I'll tell you about 8 different methods. 8 different methods to achieve positive self-talk. Because it is only through this self-talk we can build self-esteem. And when there is no self-esteem in life, life is listless, worthless, good for nothing. We feel all those negative tendencies, self-victimization. We feel all those inferiority complex. We can't achieve anything. हमको लगता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट दे आर जस्ट लाइक विश. एक जैसा क्षितिज होता है, लगता है कि धरती और आकाश वहां पर टच हो रहा है, परंतु जाओ तो दिखता है वहां टच नहीं हो रहा है. इट रिमेन्स एन अनसेटिस्फाइड ड्रीम. So there are 8 things we have to do in order to achieve or come to this positive self-talk. First thing, and which every one of you have to do in your daily life. Every one of you, regardless of you like religion or not, regardless whether you like spirituality or not. This is immaterial. Even if you want to achieve success in your material life, whatever, you have to do these 8 things. First is silence. Maun. Without silence, you cannot hear the internal voice. अंदर जो आवाज है ना, वो हम सुन नहीं पाते, और वह अंदर की आवाज कुछ ना कुछ बोल रही है निरंतर. Mahatma Gandhi has written somewhere in one article in Young India, 6th August 1921. He has written that हम लोग एक बार साउथ अफ्रीका में गए. वहां पर एक ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री थी, एक आश्रम था, और वहां देखा कि वहां सब लोग चुप है. तो मैंने पूछा वहां के हेड से, why people are silent? तो that head of the institution said, see, we keep on doing so many things whole day, and there is an inner small voice, and we have no time to hear that voice. When we will hear that voice? Is it not better that we stay calm and we stay quiet and listen that small inner voice which is internally going on? और वो मठाध्यक्ष कहते हैं कि इसलिए इस आश्रम का नियम है कि जो भी आएगा यहाँ पर मौन रहेगा. क्यों? क्योंकि क्या बोलना है वो हमको पता ही नहीं. जब हम शायद सीख जाएंगे तब हम बोलना चालू करेंगे. तो महात्मा गांधी has written a very good thing. He said that I am really impressed by this silence, and he said silence was my shield during the time when I was unable to speak, because there is always in his own words a propensity, a tendency to exaggerate things, to modify things, or to suppress the truth, and silence is necessary. तो सबसे पहली चीज जो चाहिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए वो है साइलेंस. एटलीस्ट मॉर्निंग 8 o'clock तक, एटलीस्ट शाम का जो समय है, 1 घंटा शाम, 1 घंटा सुबह, इस 1 घंटे में also not just the silence of the mouth but digital silence. WhatsApp का noise थोड़ी देर बंद हो, and then in that moment you talk with yourself. दूसरों से बहुत बातें कर ली, दोस्तों से बहुत बातें की, माँ बाप से बहुत बातें की, रिश्तेदारों से बहुत बातें की, अपने आप से कब बात की? कितनी सारी चीजें हैं जिसका उत्तर, जिसका आंसर, जिसका सॉल्यूशन केवल और केवल मुझे पता है. अपने आप से बातें ही नहीं की. बाहर सब कुछ कर रहे हैं, बाहर there is an external fame, glory, name, but internal there is a emptiness, internal there is a vacuum. A discontent is there about everything. The outside we are showing that we are very happy, I am very happy, but that silence is missing because we are lost in that noise, in that commotion of disturbance. So the first thing for positive self-talk, and which everyone has to do, is silence.
कहां से निकालना है? उस साइलेंस को चुराना पड़ेगा आवाज की दुनिया से। कैसे करना, क्या करना, खुद ही स्वयं को सोचना पड़ेगा। कैसे और किस मोमेंट में मैं चुप रहूं और खुद से बात करूं। फर्स्ट। सेकंड इज सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स एकांत। सॉलिट्यूड मीन्स when you are alone and nobody is around you. How many moments of the day we spend in solitude? Hardly any. And if you know, all the greatest discoveries of the world have taken place in silence and solitude. All the greatest inventions that ever happened, they did not happen in the din and the clamor of the world, but they happened in the moments of deepest of the silence. I was recently reading an interview by A.R. Rahman. He was saying कि जब मुझे नया म्यूजिक बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, सब तरफ से अपने आप को अलग कर लेता हूँ, सब तरफ से एकदम डीप साइलेंस और सॉलिट्यूड में चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो गीत और संगीत बनाना है वो नहीं बनाना है जो ऑलरेडी बना चुका है. आई वॉन्ट टू मेक समथिंग न्यू. सो फॉर दैट क्रिएटिविटी, फॉर दैट न्यूनेस, आई नीड मूवमेंट्स ऑफ साइलेंस एंड मूवमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड. एंड इन दैट मूवमेंट न्यू म्यूजिक इज क्रिएटेड. हम लोग जो सुनते हैं बाद में बहुत अच्छा म्यूजिक है, ये तो बहुत आगे की स्टेज है. इवन माइकल जैक्सन हैज सेड समवेयर कि व्हाट आई डांस दैट इज जस्ट एन एक्सटर्नल, बाकी इंटरनल डांस occurs first. And a moment comes in my life when dancer and dance become one. Dancer and dance become one. Such an internal harmony happens. And all these things will happen only in solitude. So the second thing, every one of you have to seek, strive, make efforts to achieve is some moments of solitude when you are alone. German philosopher Eckhart had said somewhere, उसने लिखा है कि मैं एक बार एकांत में बैठा था. Eckhart had written, I was sitting in silence somewhere in some jungle, in some woodland. So one of my friend was passing for that way. और वो आके उसने कहा, अरे मुझे लगा तुम अकेले बैठे हो इसलिए मैं कंपनी देने आया हूँ. तो Eckhart says, I was enjoying my own company. Now you have come. After your coming, I have become alone. So that is the importance of solitude. So seek solitude, and in that solitude, talk with yourself. एकांत और उस मौन में अपने आप से बात करना. ये दूसरा. तीसरा है नेचर. थर्ड इज नेचर, प्रकृति. जब तक हम प्रकृति से दूर है, नेचर से दूर है, वी कैनॉट अचीव क्रिएटिविटी. whatever it may be, any field of life, so long as you are away from nature, you cannot achieve creativity. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand and beneath the bow and stare as long as ship and cow. अंग्रेजी लेखक लिखता है कि कैसा हमारा जीवन है. वो गाय हमसे अच्छी है, एक जगह रुक के देखती है, प्रकृति का आनंद लेती है, पर हम कहां भागे जा रहे हैं. So go near nature. Go. That nature could be anything. Sunset, sunrise. That nature could be evening, morning, chirping of the birds. That nature could be mountains and streams, sunlight, anything. But you go to nature and then positive self-talk will occur on its own. अपने आप वो प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति की गोद में अपने आप वो सकारात्मक स्व से बात करना, स्वचिंतन अपने आप होगा. तो तीसरी जो चीज है जो हर एक को करनी है वो है नेचर के पास जाना. फोर्थ, वॉकिंग. आप में से कितने लोग हैं जो डेली वॉक करते हैं? वॉक मतलब वो नहीं बोलना कि हम किचन जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, वो वाला वॉक नहीं. वॉकिंग. वॉकिंग मीन्स लॉन्ग वॉक. लॉन्ग वॉक पे चले जाना. एक अंग्रेजी लेखक ने कितनी अच्छी चीज लिखी है कि रात में एक बार मेरे पिताजी का और मेरा इतना झगड़ा हो गया कि सुबह जब हुई तो मैंने कहा, एक तो अब आप रहेंगे या मैं रहूंगा. पिताजी ने कहा, निकल यहां से, घर मेरा है. तो उसने लिखा कि मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं निकल गया घर से, अब मैं कभी नहीं आऊंगा इस घर में. अब निकलने के बाद पता चला पैसे तो है ही नहीं, वैसे ही निकल गया, गुस्से में निकल गया. और तो क्या करूं, अब पैसे नहीं है, बस टैक्सी कुछ नहीं, सुबह का समय, अमृत वेले का समय, 4 बजे का, और चलता जा रहा है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर. और माइंड इतना शांत हो गया चलते चलते कि वो कहता है कि गलती तो मेरी है.
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, एंड ही कम्स बैक। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में ये गिनाते हैं, सेल्फ टॉक। सो टॉक, वॉकिंग, go for a very long walk, listen some class, some good music or natural music of the nature, but go for a walk and you will feel energetic, fresh, refreshed. कोई समस्या है, put that question and go for a walk. This is the problem of life. I am feeling disturbed by this person, I am feeling disturbed by this event. कल किसी ने मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया, डिस्टर्ब, रात भर नींद नहीं आई, वॉक के लिए चले जाओ, लंबा 4 किलोमीटर। जब आओगे तब तक माइंड शांत हो गया होगा। तो फोर्थ इज वॉकिंग। फिफ्थ इज एफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस। आई सजेस्ट यू, जिसके पास भी मोबाइल है, मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एफर्मेशंस, वो डाउनलोड कर लो। उसमें अलग अलग चीजों के लिए एफर्मेशन दिखे हुए। वेट कम करना है तो क्या क्या बोलना है अपने आप से, हेल्थ चाहिए तो क्या क्या बोलना है अपने आप को, कोई एडिक्शन से मुक्त होना है, गेम्स एडिक्शन है, शॉपिंग का एडिक्शन है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन न्यूज रीडिंग, ऑनलाइन एनी एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन है, उसके लिए क्या क्या एफर्मेशंस चाहिए। पास्ट टेंस के एफर्मेशन, प्रेजेंट टेंस के एफर्मेशन, फ्यूचर के एफर्मेशंस। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपने पास टॉक लिखा हो, आपकी एक डायरी हो, डायरी में ऐसी 10 चीजें लिखी हो। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू अचीव सक्सेस इन योर करियर, उसमें लिखो आई एम अचीविंग सक्सेस, आई एम सीइंग माई सेल्फ एज अ ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। Just as last time also I had given you example of our Dean, Dr. Aichit, when I was a medical college. फर्स्ट डे ही केम इन मेडिकल कॉलेज 1960s में आए, तब उन्होंने सोचा कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसी कॉलेज का एक दिन मैं डीन बन जाऊंगा। फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट, रैगिंग का डर, उसमें उन्होंने ये चित्र, ये संकल्प किया, ये थॉट, ये प्लेज, और उसी थॉट को रोज देखते रहे और पिक्चराइज करते रहे, एंड वन डे ही बिकेम द डीन ऑफ दैट मेडिकल कॉलेज। ही टोल्ड दिस इवेंट ऑन हिज लास्ट डे इन दैट मेडिकल कॉलेज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट एमबीबीएस। He narrated this, how a vision was created. Visualization, create करो एक visualization। खाली चीजों को, हर चीज से आंखों से देखना एक है मन से देखना। मन से देखना इज मोर पावरफुल। जो बनना है वो देखो कि ये मैं बन चुका हूं, दिस इज मी, आई हैव ऑलरेडी बिकम दिस, एंड नाउ दिस डिस्टेंस इज कमिंग नियरर एंड नियरर। So this is known as affirmations, and next is visualization, combined together। स्वयं से बात करना, पॉजिटिव थॉट्स का कुछ लिख के रखना, लाइक अभी हमने जो शुरुआत की थी, आई हैव एबंडेंट एनर्जी, आई एम एंजॉइंग रेडिएंट हेल्थ, आई एम इमिटिंग पॉजिटिव वाइब्स, आई हैव ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ माय लाइफ। ये चीज, जैसे कोई किसी को एक एडिक्शन, इंटरनेट का एडिक्शन हो गया, नाउ ही वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन। वो इंटरनेट की वजह से उसका आधा 8-8 घंटा जा रहा है, 10-10 घंटा जा रहा है, क्लिक 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 क्लिक, सर्फिंग सर्फिंग सर्फिंग, अननेसेसरी सर्फिंग, और कहां से कहां जा रहा है। He is going in the world of all the worthless sensuality, और वहां से अब निकल नहीं पा रहा है। टेक द सम्मान, टेक द सेल्फ रिस्पेक्ट, टेल द सेल्फ एस्टीम कि ये इंटरनेट के एडिक्शन से छूटना मेरे लिए दुनिया की सबसे आसान काम है, ये मेरे लिए सबसे आसान काम है। दिस इज नोन एज एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस। एंड नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। अपने आप को देखो कि ये आदत से मैं छूट चुका हूं, ये जो निगेटिविटी की आदत है, हर चीज में निगेटिव देखना, हर चीज में निगेटिव देखना, इससे मैं छूट गया हूं। अब मुझे सब जगह पॉजिटिव दिखाई देने लगता है, अपने करियर भी, बाकी लोग भी। I don't see people as negative beings, as they are as if plotting against me, as if planning against me, but I see them as fellow beings, spiritual beings. So next is visualization, affirmations, visualization, and then next 5. चाइना, जापान में 5 बंदर की चर्चा है, उसमें से 3 तो बहुत फेमस है, जिनको हम भारत में कहते हैं महात्मा गांधी के बंदर। पहला है बुरा ना देखो। इन जापान दैट मंकी इज नोन एज मिज़ारू। मिज़ारू, मिज़ारू अर्थात डू नॉट सी नेगेटिव। द मोर यू सी नेगेटिविटी अराउंड, द मोर नेगेटिव टॉक विल बी देयर, एंड द मोर द नेगेटिव टॉक यू विल गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन। फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां लो, डिप्रेशन की गोलियां लो।
क्यों? Because you are seeing only negativity. Can there be another method कि we see only positivity? Let the situation be anything, but can we make a search for positivity in on those situations? तो मिज़ारू means not to see negative. Next is किक्याज़ारू. किक्याज़ारू means not to hear negative. But आप बोलेंगे दूसरे आके सुनाते हैं तो हम क्या करें? Let them tell us, but what to imbibe inside is with us. We will see one more thing about this. Third is not to speak negative. Otherwise there is a continuous habit. हमारे शब्द जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं. कभी कभी हमारे मन में भाव नहीं होता है पर शब्द हम बोल देते हैं और उसके वजह से फिर पश्चाताप होता है. वर्ड्स जो हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने किसी को बोल दिया ये तो है ही ऐसा, इसको तो ये आता ही नहीं, ये हमेशा ही लेट करता है. You have just insulted somebody in front of everyone and you feel repentant inside later on. So what we are speaking, if the words which we are speaking are negative, that will create negative self chatter, self talk within. So not to speak. ये तीन बंदर तो बहुत फेमस है. एक चौथा भी है जिसको वो कहते हैं शिज़ारू. शिज़ारू अर्थात not to do anything negative. And last monkey is not to think, Iwazaru. Ovazaru, not to think negative. So these are the 5 wise monkeys. I'll just give you one example. एक बाप होता है, उसके 2 बेटे होते हैं. एक जो होता है फुल पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि कुछ भी हो जाए वो पॉजिटिव ही रहता है. दूसरा जो बेटा होता है वो इतना निगेटिव होता है, इतना निगेटिव होता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है. तो एक दिन वो पिताजी, उनके 2 कमरे होते हैं. पहला जो बेटा है उसके कमरे को बहुत खिलौने से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं और बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं. और शाम को उसको पूछते हैं, बोलो बेटो तुमको कैसे लगा? तो वो कहता क्या लगा, कैसे लगना था, वही सब फालतू चीजें, खिलौने तो क्या मतलब है, सब टूट गए खिलौने, वैसे भी टूटने ही वाले थे, फूल तो मुरझाने वाले हैं, और ये जो डेकोरेशन है तो आपने तो धर्म पढ़ा है, किताबों में लिखा है सब नश्वर है, एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, एवरीथिंग इज अबाउट टू गेट डिस्ट्रॉयड, सो इट इज यूजलेस. दूसरा जो बेटा होता है, पिताजी एक ऐसी युक्ति करते हैं, घोड़ा जो होता है ना, एक्सक्रीटा ऑफ द हॉर्स दैट इज नोन एज लीद, एक्सक्रीटा, उससे उसका कमरा भर देते, पूरा गंदी स्मेल. वो दूसरा जो बेटा होता है. अब पिताजी सोचते हैं कि लेट मी थिंक व्हाट ही डज इन दिस ग्रेटेस्ट ऑफ द नेगेटिव सिचुएशन, दैट आई हैव फिल्ड हिज रूम विद द एक्सक्रीटा ऑफ द हॉर्स व्हिच इज स्मेलिंग सो बैडली. So he goes in the evening and he finds कि वो बेटा नाच रहा है, झूम रहा है. वो जो घोड़े का जो है उसमें ढूंढ रहा है कुछ, नाच रहा है, गाना गा रहा है. तो पिताजी उसको कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है देखो पिताजी, आपने घोड़े की लीद यहाँ तो है, इसका मतलब घोड़ा भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो मैं उसी घोड़े को ढूंढ रहा हूँ. So I am searching that horse. So he is, whatever is the situation, but he created something positive out of it. So what we see is very important. हम क्या देख रहे हैं, टाइम किस में जा रहा है, इंटरनेट पे बैठ के कौन से वीडियोस देख रहे हैं. अगर वो नेगेटिव देखा जा रहा है, अगर वो सेंसुअलिटी देखा जा रही है, तो माइंड में भी वही एंटर करेगा, फिर दिन रात वही चिंतन चलेगा. क्या सुन रहे हैं, कौन से गीत सुन रहे हैं, कौन से सॉन्ग सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं. सी, सबका जो आधार है संकल्प है, सोच है, और ये सोच को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है जो आसपास इर्द गिर्द हो रही है. इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर इज कंट्रोल. आंखों को वो नहीं देखने देना है जो उसे नहीं देखना है. Most of the students' career in today's age are decimated, destroyed by internet. Internet is the biggest boon. We can learn so many things, but it is the greatest bane as well. Because what you are seeing, if you are seeing sensuality, the same sensuality will enter within. Then it will not be appearing to, you will not see human beings as human beings, but you will see them as sensual and sexual beings. And the same sensuality will enter into the inside the heart. And there won't remain any purity of relationship. फिर ना तो वो पति पत्नी का संबंध रहेगा इन फ्यूचर, ना तो वो फ्रेंडशिप का संबंध रहेगा, बट इट विल बी जस्ट अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसुअलिटी विद इन.
It's the most important thing is what I am seeing, what I am hearing, what I am speaking, what I am thinking, and what I am doing. These are the 5 things. These are known as 5 wise monkeys. Mizaro, Kikazaro, Ivazaro, Shizaro, Omavazaro. ये 5 नाम है उन मंकीज के. रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और अभी जो युद्ध है, आप यहां पर अगर कुछ गलती हो जाती है तो जीवन भर पर्सन रिपेंट्स. और यहां यदि कुछ अच्छा कर लो तो देन यू हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टर रूपा. 25 years of life she has dedicated to this institution, to this job, to this profession. This is not a joke. It requires कितने टेम्पटेशन आए होंगे. वो चाहते थे तो संसार में भी जा सकते थे, हजारों लाखों करोड़ों कमा सकते थे. She could have done that. And anybody is ready to take her. But she persisted. She told ना, जब यहाँ आए थे आबू जंगल था, जंगल कुछ भी नहीं था वहां पे. संसार की चमक धमक से निकलकर यहाँ आना और ऐसे रिमोट एरिया में इतना बड़ा कॉलेज और इतना बड़ा ये सारा कुछ नर्सेस का करना, दिस इज नॉट अ जोक. इट रिक्वायर्स सच अ डिवोशन, सच अ डेडिकेशन. But it is possible for all of you, as she said just now, that she will be very happy if one of you one day backs that award which she has got today. And it is possible. And it is possible again with silence, again with solitude. Again, one more thing is remaining, that is writing. I'll come to it. Silence, solitude, visualization, affirmations, and these 5 wise monkeys. Nature, walking. Create a goal. Have that positive self-talk. And last thing, 8th thing is writing. कितने लोग हैं यहाँ पर जो डायरी लिखते हैं रोज रात में अपनी डायरी, और आपकी डायरी किसी और ने लेके पढ़ ली तो? हाँ. See, diary writing is such a good habit. सारे दिन भर में, you know, in memory training, in psychology also they tell, if you want to develop your memory, they tell for photographic memory, they tell you this technique of diary writing. डायरी राइटिंग में क्या लिखना है? मैं सुबह उठा, इस तरफ से उठा या इस करवट से उठा. ट्राई टू रिकॉल. बाथरूम में बकेट कौन सा रंग की थी? स्कूल में आया, कॉलेज में गया, फर्स्ट लेक्चर कौन सा था, उसमें कौन कौन सी बातें थी. एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, रात को सोने से पहले सुबह से लेकर रात तक क्या क्या हुआ वो सब याद करने की कोशिश करना. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफिक मेमोरी एवरी नाइट. एंड उसके साथ ही जुड़ा हुआ है डायरी राइटिंग. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, स्टार्ट राइटिंग डायरी. इफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, राइट इन पॉइंट्स. लाइक आज मैं उठा 6 बजे उठा, उठने के बाद ये किया, उठने के बाद वो किया, पॉइंट वाइज. 1 महीने के बाद फिर हर संडे उसको रिव्यू करो. उसमें लिखो आज मैडम ने ये कह दिया या किसी दोस्त ने ये कहा तो मुझे बहुत आंसू आ गए, फिर मैं 1 घंटा तक रोई, वो भी लिख देना. फिर संडे को देखना, और संडे को जब देखोगे अरे ये इतनी छोटी सी बात थी और मैं रो दी, ये भी कोई रोने की बात है. यू विल सी योरसेल्फ एज अ विटनेस. यू विल फाइंड सच अ स्मॉल थिंग एंड आई वाज क्राइंग, such a silly thing. I should be very strong. Recently somebody sent me an image on WhatsApp पे किसी ने इमेज भेजा. 2 deer, 2 हिरन. एक हिरन है, बच्चा है, उसको एक तीर लगा और गिर गया नीचे. दूसरा वही हिरन अब थोड़ा सा मैच्योर्ड हो गया है, बहुत सारे तीर लगे हुए हैं और खड़ा है. इतने घाव, but very stable, very strong. The world will hurt you, but every time it hurts, you learn from it. It is not that मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे वैसा क्यों. फीलिंग देवी नहीं बनना है. इसमें से कौन कौन फीलिंग देवी है, हाथ खड़ा करना जरा. स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स, फीलिंग देवी पता है ना, वो कीप ऑन क्राइंग. बात में जिनको रोना आता है, किसी ने कुछ बोल दिया, ये क्यों किया, रोना चालू. रूठना, रूसना, नाराज होना, all this business starts. So don't become feeling devi, you have to become very strong in life. So one of the things for positive self-talk and building self-esteem is writing. Start writing diaries. So time is getting up, and with these 8 points, I'll end this talk. Again, I would like to revise. What are the 8 points? First, silence. Second, solitude. Third, nature. Fourth, walking. Fifth, affirmation. Sixth, visualization. And one more you can add is this last which I said, writing. Seventh and eighth, 5 wise monkeys. Okay, जो अभी सुना इसको भी याद, रात को सोने से पहले याद करना, ये क्लास में क्या क्या सुना.
आज जो जितने भी लेक्चर्स होंगे सोने से पहले याद करना, उसमें हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनी वो लिख लेना. So this is a practice of diary writing. This is not just the diary writing, but this is building self-esteem and building positive self-talk. Okay. Om Shanti. Thank you.